previous chapters revision एक बार. Okay. I Okay, don't. then let's do 5 or 6 questions, then move. We'll do the next topic. Okay. So, first question is, which of the following best describes the purpose of understanding an entity's business model? So, when we understand about entity's business model, so what is our primary purpose of doing this? To ensure compliance with legal requirement, to identify potential tax advantages, to evaluate the competitive positioning and value creation of the entity, or to access the efficiency of IT system. To evaluate the competitive positioning and value creation of the entity. Yes, correct. आपकी बिजनेस मॉडल से बेसिकली हमें पता चल रहा है ना कि कितना कंपटीशन हो सकता है, क्या वैल्यू है एंटिटी की, मार्केट शेयर्स क्या है उसके. Yes. When analyzing an entity's investment portfolio, what should auditor primarily focus on? तो जब आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो देख रहे हो एंटिटी का, तो व्हाट इज योर प्राइमरी फोकस basically when you are checking about investment portfolio or something? Valuation method and risk return profile. Yes. ठीक है कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट चेक करें, हमारा प्राइमरी पर्पस क्या है कि वैल्यूएशन मेथड्स करेक्ट हैं या नहीं है. तो अभी हम फिलहाल जब समझ रहे हैं एंटिटी के बारे में, तो वी विल चेक व्हाट आर देयर वैल्यूएशन मेथड एंड व्हाट are the risk return profiles, means whether the investment are highly risky or are less risky. Okay. Okay. Okay, next question is, what is a key aspect of understanding the entity's market and customer base? So when we understand about market and customer base, Analyzing customer demographics and market segmentation. yes, correct. When we understand about market and customer base, we basically are looking at the customers' needs, their demands for the product. Okay. So next question is, which of the following is an important consideration when examining capital expenditure? So capital expenditure के regarding आप क्या consideration करते हो? Competitive pricing strategies. कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स कि आप ये चेक कर रहे हो ना कि कितना कंपनी कल को कहाँ पर अपने जो भी कैश फ्लो है कहाँ एक्सपेंड करने वाली है, मीन्स हाँ. कल को कौन सी इन्वेस्टमेंट्स करने वाली है. तो यू आर बेसिकली चेकिंग द इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड अप्रूवल प्रोसेस कि कल को आप इन्वेस्टमेंट करने वाले तो उसका आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है. So this is in consideration. Okay. And Okay. approval processes मतलब. मीन्स कि है ना कि जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है कि किस बेसिस पर लाइक उसका अप्रूवल दिया गया है. Okay, समझा. यस, क्योंकि बिग इन्वेस्टमेंट के लिए एक अप्रूवल चाहिए ना, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनसे. Okay, understood. Why it is essential to understand an entity's capital structure? कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स कि उसकी डेब्ट इक्विटी के बारे में जब आप समझ रहे हो, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? To assess funding sources, यस. leverage and cost of capital. यस, कि उनके फंडिंग सोर्सेस क्या है, मींस फ्रॉम वेयर आर यू टेकिंग दिस डेप्थ, लेवरेज, देयर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि क्या आपकी जो भी डेप्थ या इक्विटी है हाईली कॉस्टली है या नहीं. तो यू आर चेकिंग अबाउट दीज एस्पेक्ट्स. ओके. Okay. ठीक है. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंटिटीज ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी एंड रिलेटेड बिजनेस रिस्क रिव्यू एंगेजमेंट. So when you are doing a review engagement,
So, what you need to understand about an entity, their objective, their strategy, and what can be the various risks that can be associated with the business. So, first is objective. Objective means alignment with the operation. Ensure that entities' objective are aligned with current operation and financial practices. So, what the entity wants to achieve, that should be aligned with their current operations. बिकॉज कंपनी की ऑब्जेक्टिव कुछ और है और दे आर डूइंग समथिंग एल्स, ऐसा नहीं होना चाहिए. Short term goals means auditor will identify and access the short term financial and operational goal relevant to the review period. So क्या क्या कंपनी के फाइनेंशियल या ऑपरेशनल गोल्स उसने बनाए हैं एंड इंश्योर देयर कंसिस्टेंसी, कि व्हाट इज द कंसिस्टेंसी बिटवीन देयर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स. Okay, so this is the duty of an auditor to understand about these aspects of an entity. Their strategy means evaluate any strategy adjustment made during the review period, such as changes in pricing strategy. कि अगर जब आप review कर रहे हो as an auditor और ड्यूरिंग द रिव्यू एंगेजमेंट अगर कुछ भी स्ट्रेटेजीज में चेंज आते हैं, लाइक अ कंपनी चेंजेस इट्स प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, कॉस्ट कटिंग मेजर, रिस्ट्रक्चरिंग एफर्ट्स, so you need to consider these also. Management discussion, you can discuss with management any strategic decision made and their expected impact on the financial results. So when you understand about an entity, you can also discuss with management की लाइक उनकी स्ट्रेटेजी या जो भी मतलब वो कंपनी के रिगार्डिंग परफॉर्म कर रहे हैं उसका क्या क्या इम्पेक्ट पड़ सकता है. यू कैन डिस्कस दीज विद मैनेजमेंट. और मैनेजमेंट की क्या स्ट्रेटेजीज हैं, अगर कोई कंपनी में रिस्क एसोसिएटेड है तो उसको मिटिगेट करने के लिए क्या मैनेजमेंट ने कुछ स्ट्रेटेजीज बनाई है या नहीं बनाई. कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ करंट मार्केट कंडीशन ऑन एंटिटी स्ट्रेटेजीज. नेक्स्ट इज बिजनेस रिस्क. बिजनेस रिस्क मतलब ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक रिस्क, operational variability, financial reporting risk. So what are the various risks that can be associated with the client business? Like it can be transaction specific risk, for example, risks that is related to significant transaction or event during the review period, such as major contract or sales agreements. ऑपरेशनल वेरिएबिलिटी मीन्स कि जो रिस्क आपके बेसिकली ऑपरेशन से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल कि कल को सप्लाई चेन में कुछ इश्यूज आ गए आपके या फ्लक्चुएशंस आ रही हैं डिमांड में, सो दैट कैन क्रिएट अ रिस्क टू अ बिजनेस. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिस्क means consider risk specific to the preparation and presentation of interim financial statement, कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में क्या क्या रिस्क आ रहे हैं. ओके. एक डाउट है. तो यस. ये जो ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी और बिजनेस रिस्क ये सारे जो मेंशन किए हैं, तो अगर आप हम ये चेक कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली ये काइंड ऑफ ऑडिट नहीं हो गया रिव्यू में? देखो ऑडिट का ये फर्स्ट प्रोसेस ही है कि आप सबसे पहले क्लाइंट की इंडस्ट्री, बिजनेस, उसके बिजनेस स्ट्रक्चर को समझो. बिकॉज जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आप किसकी रिव्यू, किसकी ऑडिट करने वाले हो, उसके बारे में ही नहीं पता होगा, तो हाउ विल यू परफॉर्म योर ऑडिट. तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी, प्लान्स, प्रोसीजर बनाने के लिए ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. तो इसलिए फर्स्ट स्टेप ही आपका ऑडिट का यही है कि आप सबसे पहले क्लाइंट के बारे में समझो. ओके, बट ये जो रिव्यू एंगेजमेंट है आपकी उससे इसमें क्या है, प्रेजेंटेशन में सर ने आपको सारे एंगेजमेंट के लिए सेपरेट बता रखी हैं. अच्छा. हाँ, तभी आपको लग रहा है कि ये बार बार आ रही हैं चीजें. हाँ. तो वो क्योंकि सारे उसके लिए सेपरेट दे रखे हैं, अदरवाइज हमारी बुक में लाइक एक ही दिया होता है कि सभी के लिए वो एप्लीकेबल है. ओके, समझा. अब फॉर एग्जांपल आपको इंटरिम फाइनेंशियल एंगेजमेंट की, अगर आप इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप रिव्यू करने वाले हो या ऑडिट करने वाले हो, तो उसके रिगार्डिंग आपकी क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे.
ओके, सो समझा। अगेन यस अगेन आप क्लाइंट के बारे में समझ रहे हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर इंटरिम ऑब्जेक्टिव। अब क्योंकि आप किसी शॉर्ट पीरियड की ऑडिट करने वाले हो तो फिर उस शॉर्ट पीरियड से रिलेटेड क्लाइंट की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके क्या क्या पर्पस है बनाने के, उन उस पीरियड की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके यूजर्स कौन कौन है और उन यूजर्स की क्या नीड है। ओके उन उस पर्टिकुलर पीरियड में क्लाइंट की स्ट्रेटेजीज क्या है कि वो उस पीरियड में क्या अचीव करना चाहती हैं या क्या चेंजेस ला रही हैं। Their resource allocation, so how they allocated their resources during interim period and their impact on financial performance. Consistency with annual plan, जो आपकी शॉर्ट पीरियड की आप ऑडिट कर रहे हो तो उसके जो प्लान्स है उस शॉर्ट पीरियड के रिगार्डिंग क्लाइंट के, तो क्या वो पूरी एनुअल प्लान से लाइक कंसिस्टेंट है या नहीं है। ओके यस। नेक्स्ट इज बिजनेस रिस्क, और अब आप इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करने वाले हो तो उसके रिगार्डिंग लाइक उस पीरियड से पर्टिकुलर क्या बिजनेस रिस्क रह सकते हैं, लाइक सीजनैलिटी रिस्क, फॉर एग्जांपल चेंजेस इन कंज्यूमर बिहेवियर और इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सपोज उस पीरियड में कस्टमर की डिमांड बहुत ज्यादा कम हो रही है तो डेट कैन क्रिएट अ बिजनेस रिस्क फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड। ओके इकोनॉमिक कंडीशन मींस कि उस पर्टिकुलर पीरियड में अगर कुछ इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे हैं तो हाउ दे अफेक्ट द क्लाइंट बिजनेस और देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। Operational continuity means consider risk related to the continuity of operation during the interim period। कि फॉर एग्जाम्पल उस पर्टिकुलर पीरियड में कोई लेबर स्ट्राइक तो नहीं हो रही, बिकॉज अगर लेबर उस पर्टिकुलर पीरियड में स्ट्राइक पर है तो डेट मीन्स उस पर्टिकुलर पीरियड का प्रोडक्शन रुक रहा है, या उस पर्टिकुलर पीरियड से रिलेटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी वर्कफोर्स मैनेजमेंट। ओके सो इनकी वजह से लाइक कोई रिस्क तो नहीं एसोसिएटेड बिजनेस में। ओके, समझा। ओके नेक्स्ट इज रिलेटेड टू अटेस्टेशन अगेन, कि आप चाहे ऑडिट करने वाले हो चाहे अटेस्टेशन चाहे रिव्यू, तो यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ क्लाइंट। सो अगेन अटेस्टेशन में भी यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर ऑब्जेक्टिव्स देयर स्ट्रेटेजीज देयर बिजनेस रिस्क। अब क्योंकि अटेस्टेशन में क्या है, यू आर गोइंग टू गिव एन ओपिनियन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस रिस्क। ओके so objective means understand the specific objective of attestation engagement such as verifying compliance with regulation or confirming the accuracy of non-financial information। You need to understand have an understanding of subject matter, क्योंकि अब आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे अपना ओपिनियन दे रहे हो तो सब्जेक्ट मैटर के बारे में आपको पता होना चाहिए। इवेल्युएट स्ट्रेटेजीज डेट आर रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट मैटर, उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड क्या क्या स्ट्रेटेजीज बनाई हुई हैं सच एज कॉम्प्लायंस प्रोग्राम और सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स। देयर स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट, तो अगर कुछ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं हाउ दे कैन इम्पैक्ट द सब्जेक्ट मैटर। सो अभी हम क्या देख रहे थे कि पूरी फाइनेंशियल्स पर उनका क्या इफेक्ट हो सकता है क्लाइंट की स्ट्रेटेजीज का या कोई चेंजेस आ रहे हैं। अब क्योंकि आप पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बजाय सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पर अपना ओपिनियन देते हो अटेस्टेशन एंगेजमेंट में, तो आपको सब्जेक्ट मैटर्स के रिगार्डिंग ही इंफॉर्मेशन गेन करनी होगी कि सब्जेक्ट मैटर क्या है, उससे रिगार्डिंग क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं आपके क्लाइंट की और उन स्ट्रेटेजीज का उस सब्जेक्ट मैटर पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। ओके यस। फॉर एग्जाम्पल कि आपको इंटरनल कंट्रोल्स पर सिर्फ ओपिनियन देने के लिए एंगेज किया गया तो डेट इज एन अटेस्टेशन एंगेजमेंट, जिस केस में आपका सब्जेक्ट मैटर इंटरनल कंट्रोल है। तो सपोज मैनेजमेंट ने लाइक जो अभी आपकी इंटरनल कंट्रोल है उसके रिगार्डिंग कुछ और प्लान्स बनाए हुए हैं कि वो लाइक अब अपनी ड्यूटी कुछ डिपार्टमेंट की ड्यूटीज रोटेट करना चाहती है या कुछ समथिंग
लाइक सेग्रीगेट और करना चाहती है ड्यूटीज को, तो इनका क्या इम्पेक्ट हो सकता है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस एनी स्ट्रेटेजिक डिसीजन दैट कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर सब्जेक्ट मैटर. ओके, आप उसके रिगार्डिंग मैनेजमेंट से भी डिस्कस कर सकते हो. देन बिजनेस रिस्क की उस सब्जेक्ट मैटर रिस्क क्या हो सकते हैं, such as compliance risk for regulatory attestation, data integrity risk for IT attestation. कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप compliance related आपको attestation engagement मिली है तो उसमें like compliance risk क्या हो सकते हैं, या अगर आपको IT related कोई attestation मिली है तो IT में like data integrity risk या data के regarding क्या क्या risk हो सकते हैं. ठीक है, जैसे आप मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपको इंटरनल कंट्रोल रिगार्डिंग ओपिनियन देने के लिए कहा है, तो फिर इंटरनल कंट्रोल कैसे हैं और उनके क्या क्या लाइक कोई चेंज आता है तो क्या इम्पेक्ट पड़ सकता है उस इंटरनल कंट्रोल्स पर. ओके, और इससे रिलेटेड रिस्क क्या है. कंट्रोल इन्वायरमेंट, इवेलुएट द एंटिटीज कंट्रोल इन्वायरमेंट एंड देयर इम्पैक्ट की लाइक आपकी एंटिटी के विद इन आप कंट्रोल इन्वायरमेंट कैसा है, कि फॉर एग्जांपल कि क्या जो भी आपके ऑपरेशंस हैं उनके पर्टिकुलर पॉलिसीज प्रोसीजर्स हैं या नहीं, आपकी जो भी हायर पे मैनेजमेंट है या टॉप लेवल पीपल हैं वो एथिक्स फॉलो करते हैं या नहीं. तो दिस इज द कंट्रोल इन्वायरमेंट, वो अभी हम अपकमिंग स्लाइड्स में भी पढ़ेंगे. एक्सटर्नल फैक्टर्स मीन्स कि क्या कुछ एक्सटर्नल फैक्टर का आपके सब्जेक्ट मैटर पे इम्पैक्ट पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता, लाइक चेंज इन रेगुलेशन, और अगर आप आईटी रिलेटेड कर रहे हो तो चेंज इन टेक्नोलॉजी. क्लियर? यस, अंडरस्टूड. ओके, सो इस टाइम पे जब हम क्लाइंट के बारे में समझ रहे हो तो हमें क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में भी पता होना चाहिए, बिकॉज इंटरनल कंट्रोल इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एंटिटी. आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी इवन परफॉर्म करते हो कंट्रोल्स की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए. ओके, तो सबसे पहले जब आप क्लाइंट के बारे में समझ रहे हो तो आपको उसके कंट्रोल भी पता होने चाहिए कि हाउ दे आर इम्प्लीमेंटिंग देयर इंटरनल कंट्रोल. Okay. तो internal controls basically क्या है? These are policies or procedures that a company set up to ensure that their operations work effectively, their financial statement reporting be reliable, and they are like complied with laws and regulations. So internal controls means basically आप क्या rules and regulations बना रहे हो within the entity, और आपके इंटरनल कंट्रोल्स जो है लाइक आपके कोसो एक कमेटी बनाई गई थी कि जिसने आपके इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क दिया था. सो बेसिकली आपके इंटरनल कंट्रोल्स में 5 कंपोनेंट्स कवर होते हैं. ये कोसो का फुल फॉर्म क्या है? कमेटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड थ्रेडवे कमीशन. तो ये आपकी बेसिकली एक कमेटी थी जिसके अंदर आपके कुछ लाइक AICP आई थिंक 3-4 और मेंबर्स होती हैं जिन्होंने मिलके फ्रेमवर्क बनाया था आपके इंटरनल कंट्रोल्स के रिगार्डिंग. तो आपके इंटरनल कंट्रोल्स मेजरली 5 कंपोनेंट से बने होते हैं. फर्स्ट इज कंट्रोल इन्वायरमेंट, सेकेंड इज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, थर्ड इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, control activities, and fifth is monitoring activities. Okay, so if you want to implement the internal control in your entity, you need to have these 5 components. Okay, इतना क्लियर है? ओके, अब हमारे ये 5 components डिटेल में आएंगे. So first of all is the कंट्रोल इन्वायरमेंट. कंट्रोल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि आप जो एंटिटी बना रहे हो उसके अंदर ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करो कि पीपल शुड बी फॉलो द एथिक्स, दे शुड बी इंटीग्रल, दे शुड बी कमिटेड टू कॉम्पिटेंस, there should be proper organizational structure, there should be proper operating style and management philosophy. जो भी आप ड्यूटीज असाइन कर रहे हो they should be like proper, you should have proper human resources policies and practices.
सो बेसिकली कंट्रोल इन्वायरमेंट का क्या मतलब है कि आप कैसी टोन सेट कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में. Okay, influencing the control consciousness of people, how you are creating a consciousness among the people regarding integrity and ethical values. So the standard of conduct and ethical behavior, कि आप अपनी जो भी एंटिटी बना रहे हो उसके अंदर कैसे एथिक्स ला रहे हो. आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इंडिविजुअल आप अपॉइंट कर रहे हो दे शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ कि लाइक टू डू देयर वर्क. कि ऐसे नहीं कि आप लाइक इनकॉम्पिटेंट पीपल्स को हायर करोगे जिनको कोई नॉलेज ही नहीं है, उनको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन कर रखी हैं. तो डेट शुड नॉट बी देयर. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड ऑडिट कमेटी, दैट मीन्स पीपल एट द टॉप, जो पीपल आपके टॉप पर बैठे हैं, दे शुड हैव देयर ओवरसाइट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस. ओवरसाइट रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि they should look over the processes of the people that who are doing their work at the bottom level. तो जो bottom level पर people हैं, like for example management, employees, तो उनकी वो जो भी work कर रहे हैं, तो आपकी जो भी people top पर हैं उनकी duty बनती है कि वो उनको overlook करें. इंडिपेंडेंस मीन्स कि आपके ये जो टॉप पे पीपल हैं इनकी ड्यूटी डेली ऑपरेशंस में नहीं होनी चाहिए. मीन्स अगर आपकी ऑडिट कमेटी ही मैनेजमेंट का वर्क करेगी, मान लो कि वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रही है, वही इंटरनल कंट्रोल्स ला रही है, तो हु विल इवेल्युएट दिस? कि अगर वही वो टास्क परफॉर्म करेंगे तो फिर उनको देखेगा कौन? So that means their duties should be segregated from the management and other peoples who are basically involved in day-to-day operations. Clear? Management philosophy and operating style, like how they approach to taking and managing the business risk. Organizational structure आपका प्लान होना चाहिए, लाइक क्या डिपार्टमेंट बनाने हैं, कहाँ कहाँ आपकी कौन सी ड्यूटीज असाइन करनी है. Policies related to hiring, ki how you hire the people, how you train them, how you retain them. Okay, so that तो policy डाउट है, should be there. Yes. ये सारे जो एलिमेंट्स है ये कंपनी के लिए ना, कि उन लोग Yes, कैसे yes, करेंगे? yes. Yes, कि एक हाँ, कंपनी के अंदर इंटरनल कंट्रोल्स में क्या क्या चीजें आती हैं. तो इंटरनल कंट्रोल्स में आपके 5 कंपोनेंट्स आते हैं किसी कंपनी ने अगर सेटअप करने हैं. उस 5 कंपोनेंट का ये फर्स्ट कंपोनेंट है कंट्रोल एनवायरनमेंट. तो अगर आप अपनी एक एंटिटी खोल रहे हो तो उस एंटिटी के अंदर आपको सबसे पहले लाइक प्रॉपर आपके पास पॉलिसीज होनी चाहिए, प्रोसीजर्स होने चाहिए रिटर्न में कि आपने कैसे लोगों को हायर करना है. लाइक व्हाट इज द हायरिंग प्रोसेस, what is the training process, what is the like process to retain the employees. देन आपका ओके. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, लाइक आप कितने डिपार्टमेंट बनाते हो, उसमें कैसे ड्यूटीज असाइन करते हो, आपकी मैनेजमेंट कैसे परफॉर्म करेगी, आपकी जो पीपल एट द टॉप है उनकी ड्यूटीज क्या होनी चाहिए, एथिक्स कैसे, आपने एथिकल वैल्यूज कैसे लानी है. तो दिस इज ऑल अबाउट द कंट्रोल एनवायरनमेंट. ओके. यस. ओके, नेक्स्ट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस. रिस्क असेसमेंट प्रोसेस मीन्स कि आप अपनी एंटिटी में देयर शुड बी अ प्रॉपर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस. मीन्स आप आपने जो भी बिजनेस खोला है, जो भी एंटिटी ओपन की है, तो देयर शुड बी सम पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग दिस एंटिटी ना. कि आप कोई बिजनेस खड़ा कर रहे हो या कोई एंटिटी बना रहे हो तो आपका कोई ना कोई तो पर्पस है ना उसके बिहाइंड. ऐसी तो नहीं आपने खोल दी वो एंटिटी. तो आपकी जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके रिगार्डिंग आपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, तो देयर शुड बी अ प्रॉपर प्रोसेस कि आप वो ऑब्जेक्टिव्स बनाओ, फिर उसके रिगार्डिंग रिस्क ढूंढो. आपने कहा कि मुझे कल को लाइक 7 स्टेट में अपना बिजनेस ऑपरेट करना है, आपकी ये स्ट्रेटेजी है, ये ऑब्जेक्टिव है, तो फिर उसके में क्या क्या रिस्क आ सकते हैं. तो देयर शुड बी अ प्रोसेस इन एंटिटी कि जहां पर वहां पर रिस्क आइडेंटिफाई भी हो, एनालाइज हो, देन रिस्पॉन्स कैसे करना है उस रिस्क को. ठीक है.
तो जो चीज हो गई उसको तब मैनेज करने की बजाय यू शुड हैव अ प्रॉपर प्रोसेस इन एडवांस कि आपकी जो भी स्ट्रेटेजीज हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके रिगार्डिंग आप रिस्क आइडेंटिफाई, एनालाइज और रिस्पॉन्स करो. तो दिस शुड बी द internal control process that a company should have. Okay. Yes, understood. जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर, मेजरेबल, आर एस्टैब्लिश. उस ऑब्जेक्टिव से रिगार्डिंग क्या इंटरनल या एक्सटर्नल रिस्क हो सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कल को एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उस इन्वेस्टमेंट में आपके क्या क्या रिस्क आ सकते हैं. यूनिट हाई कैश फ्लो. हाई कैश फ्लो चाहिए आपको, लाइक हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए, कहीं पर आपने कोई बिजनेस एक्सपेंड करना है, आपको कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग क्या रिस्क आ सकते हैं. मीन्स अगर आप डेप्थ और लोगे तो फिर उसके डेट मीन्स आपकी जो भी लिक्विडिटी है उस पर अफेक्ट हो सकता है, आपकी सॉल्वेंसी पर अफेक्ट हो सकता है. ओके, या आपकी इन्वेस्टमेंट हाईली रिस्की है. जस्ट ओके. ओके, 1 मिनट वेट करो, मैं चार्जिंग पे लगा दूं. ओके. देन यू नीड टू एनालाइज द रिस्क कि उस रिस्क का क्या लाइकलीहुड है. मीन्स कि क्या वो रिस्क होने के चांसेस लाइक रिमोट है. मीन्स कि वो रिस्क बहुत कम चांसेस है कि वो ऐसा कुछ हो, या बहुत ज्यादा चांसेस है. मीन्स लाइकलीहुड क्या है और इम्पैक्ट कि अगर वो रिस्क हुआ, लाइक ऐसी कोई इवेंट हुआ तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है आपके बिजनेस पर. तो ये चीज आप एडवांस में एनालाइज करके चलो. देन यू शुड हैव द स्ट्रेटेजीज कि आपको उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है. लाइक आपको उस रिस्क को एक्सेप्ट करना है, आपको उसको रिड्यूस करना है, उसको अवॉइड करना है, या शेयर करना है. ओके. मीन्स आप लाइक उसके रिगार्डिंग कोई स्ट्रेटेजीज नहीं बनाना चाहते क्योंकि आपको लगता है कि वो रिस्क होने के चांसेस बहुत 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 कम है, या आप उसे अवॉइड करना चाहते हो बिकॉज हो सकता है कि आपको उस रिस्क को रोकने के लिए जो स्ट्रेटेजीज चाहिए वो हाईली एक्सपेंसिव है. तो आपको लगता है कि है ना, लाइक इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसके रिगार्डिंग इतना एक्सपेंस, आपकी इतनी मनी वेस्ट की जाए, तो उस केस में आप अवॉइड कर सकते हो. और अगर आप चाहते हो कि रिस्क रिड्यूस करना तो आप स्ट्रेटेजीज बना सकते हो. आप चाहते हो रिस्क को शेयर करना, मींस इंश्योरेंस करा सकते हो आप उस पर्टिकुलर चीज का. तो ये सारे आपका रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के अंदर आते हैं. इतना क्लियर हुआ? हाँ, क्लियर है. ठीक है. थर्ड कंपोनेंट है आपका इंटरनल कंट्रोल का, कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम. कि आपकी एंटिटी के अंदर देयर शुड बी अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए. कि कैसे एक इंफॉर्मेशन आपकी एंटिटी में फ्लो होगी और कैसे कोई भी आपकी कम्युनिकेशन लाइक कम्युनिकेट होगी इंटरनली या एक्सटर्नली. तो उसके रिगार्डिंग आपका एक प्रॉपर सिस्टम सेटअप होना चाहिए विद इन एन एंटिटी. कि कैसे आपने कोई इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई, कैप्चर या एक्सचेंज करना है, तो डेट शुड बी देयर. इंफॉर्मेशन क्वालिटी मीन्स कि जो भी इंफॉर्मेशन आपकी सर्कुलेट होती है, डेट शुड बी रेलेवेंट, टाइमली एंड एक्यूरेट. ओके. इंटरनल मीन्स कि आपकी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कैसे कम्युनिकेशन होनी चाहिए, और एक्सटर्नल मीन्स कि कैसे एक्सटर्नल पार्टी से कम्युनिकेशन होनी चाहिए. तो देयर शुड बी अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इन एन एंटिटी. ओके. For example, our retail chain uses an integrated ERP system to ensure that inventory levels are updated in real time across all store. For example, आपने क्या किया कि आप
कि कोई गुड्स आप सेल करते हो, आपको उसका बिजनेस है कि आप कोई पर्टिकुलर गुड को सेल करते हो, तो उस केस में अब आपके वेयर हाउस में इन्वेंट्री कितनी पड़ी है और लाइक किस टाइम पे आपको इन्वेंट्री रीऑर्डर करनी है, तो उसके रिगार्डिंग आपके क्या प्रोसेसेस बनाए गए हैं। कि सपोज आपने क्या किया, ईआरपी सिस्टम सेटअप कर दिया कि इसमें क्या होगा कि जिस टाइम पर आपकी इन्वेंट्री वेयर हाउस से जाएगी उसी टाइम आपकी इन्वेंट्री अपडेट हो जाएगी। तो डेट मीन्स आपके पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन होगी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आपकी कितनी इन्वेंट्री पड़ी है। ओके, कि बजाय इसके कि आप पीरियोडिकली जा जाकर इन्वेंट्री काउंट करो, आपने कोई ऑटोमेटेड सिस्टम सेट कर दिया कि जब भी इन्वेंट्री आपके वेयर हाउस से जाएगी आपका वहां पर सिस्टम में ऑलरेडी अपडेट हो जाएगा। तो कैसे मींस इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करनी है, तो ये आपका प्रोसेस आता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम में। अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट इज द कंट्रोल एक्टिविटीज। आपने कंट्रोल इन्वायरमेंट सेट कर दिया, अब देयर शुड बी कंट्रोल एक्टिविटीज आल्सो, मींस कि देयर शुड बी अ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर दैट हेल्प to ensure management directives to mitigate risk to achieving the objectives. So अब आपकी जो भी आपकी ऑब्जेक्टिव्स के रिगार्डिंग आपने रिस्क मिटिगेट करने की स्ट्रेटेजीज बनाई है या जो भी बनाया है, तो क्या वो प्रॉपरली इंश्योर हो रही है या नहीं, मींस मैनेजमेंट डायरेक्टिव्स की कैसे वो मिटिगेट कर सकते हैं। बेसिकली रिस्क को आपने स्ट्रेटेजीज बना दी, अब उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन डू एन परफॉर्मेंस रिव्यूज की पर्टिकुलर बजट फोरकास्ट के अगेंस्ट रिव्यू होना चाहिए कि आप जो भी आपका बजट बनता है उस बजट के बाद जो भी एक्चुअल नंबर्स हैं, तो देयर शुड बी अ कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल एंड बजटेड नंबर्स। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मींस कि जो भी आपकी एक्यूरेसी है, कंप्लीटनेस, ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन शुड बी प्रॉपर। आपकी सपोज करो सेल्स ट्रांजैक्शंस हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपकी सेल ट्रांजैक्शन किसने ऑथराइज करनी है, किसने रिकॉर्ड करनी है, तो आपके प्रॉपर प्रोसेसेस होने चाहिए। फिजिकल कंट्रोल्स लगा सकते हो आप विद इन दी एंटिटी। फिजिकल कंट्रोल्स मींस कि लाइक एक्सेस रिलेटेड कंट्रोल, फॉर एग्जांपल आपने असेट्स के लिए फिजिकल कंट्रोल्स लगा दिए, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी गार्ड, कैमरा। ओके, so these are physical control। और very important is segregation of duties, कि आप ड्यूटी सेपरेट करो पीपल्स की, क्योंकि अगर सेम इंडिविजुअल को आप इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दोगे, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दोगे सेम पीपल को, तो ही माइट कैन डू सम फ्रॉड और इवन कैन हाइड इट फ्रॉड। ठीक है, तो ड्यूटीज प्रॉपर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो पर्सन ऑथराइज कर रहे हैं, जो पर्सन रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो पर्सन के पास कस्टडी है और जो इवेल्युएट कर रहे हैं मींस कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर ड्यूटी सेग्रीगेट होनी चाहिए। These help you to create and control activities within the entities, कि आपकी एक्टिविटीज पर आप कंट्रोल लगा रहे हो एंटिटी में। ठीक है, आप ड्यूटी सेग्रीगेट कर रहे हो कि किसी सेम इंडिविजुअल को आप ड्यूटीज मल्टीपल ड्यूटीज नहीं दे रहे। आप फिजिकल कंट्रोल लगा सकते हो, कोई ट्रांजेक्शन्स कैसे रिकॉर्ड होनी है, कैसे कंप्लीट होनी है, उस पर कंट्रोल लगा सकते हो। यू कैन ऑल्सो डू सम परफॉर्मेंस रिव्यूज की जिसमें आप बजटेड और एक्चुअल नंबर्स को कंपेयर कर रहे हो। इतना क्लियर हुआ? हाँ क्लियर है। अच्छा, कोई डाउट आपको यहाँ तक? नहीं, डाउट नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग एक्टिविटीज। मॉनिटरिंग मीन्स कि अब आपने सारे इंटरनल कंट्रोल सेट कर दिए, लेकिन क्या सेट करना ही लाइक इनफ है? आपने बना दी पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, ड्यूटीज दे दी, लेकिन क्या वो एक्चुअल में वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही, ये तो देखना पड़ेगा ना। सो एक लास्ट कंपोनेंट बनाया गया मॉनिटरिंग एक्टिविटीज की। अब इट इज द ड्यूटी कि आप
जो है इन एक्टिविटीज को इवेल्युएट भी करो कि वेदर दीज आर वर्किंग विद इन द एंटिटी और नॉट। सो इवेल्युएशन के लिए बेसिकली आप ऑनगोइंग मॉनिटरिंग कर सकते हो, मींस रेगुलरली जैसे जैसे प्रोसेसेस हो रहे हैं रेगुलर मॉनिटरिंग चलती रहे आपके साथ साथ। आप सेपरेट इवेल्युएशंस भी कर सकते हो, मींस जैसे महीने में एक बार आपने इवेल्युएट कर दिया कुछ प्रोसेसेस को, ठीक है। आपकी ऑनगोइंग मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए, सेपरेट भी होनी चाहिए। ऑनगोइंग मींस कि रेगुलरली चल रही है, मतलब फॉर एग्जाम्पल रेगुलरली कैमराज आप कैमरा में चेक कर सकते हो, सुपरविजन रख सकते हो कैमरास के थ्रू। सेपरेट इवेल्युएशन मींस कि कुछ पीरियोडिक इवेल्युएशन कंडक्ट कर सकते हो, लाइक आप मंथ में एक बार आप अपनी जनरल लेजर और सब्सिडियरी लेजर को रिकंसाइल करके देख रहे हो, आप बैंक रिकंसिलेशन कर रहे हो, तो देयर शुड बी सेपरेट इवेल्युएशन आल्सो, ओके, जिसे आप इंटरनल ऑडिट्स भी बेसिकली बोलते हो। रिपोर्टिंग डेफिशिएंसीज का मतलब, अब जब आप इवेल्युएट कर रहे हो तब आपको कोई ना कोई हो सकता है ना डेफिशिएंसी दिखे कहीं पर, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल ना कि आपके सारे प्रोसेसेस 100% वर्क कर रहे हैं। हो सकता है कहीं आपको डेफिशिएंसीज दिखे, तो उन डेफिशिएंसीज को आपको रिपोर्ट और करेक्ट करना जरूरी है, ओके। जहां आपको कमी दिख रही है उसको आइडेंटिफाई करो और यू शुड रिपोर्ट एंड करेक्ट इट, कि आपको अगर मिली है तो लाइक इंटरनल ऑडिटर ने कुछ डेफिशिएंसीज ढूंढी तो वो किसको बताएगा, जाकर आपके जो भी टॉप पर पीपल हैं उनको रिपोर्ट करें एंड दे शुड मेक सम प्लान्स टू करेक्ट दैट डेफिशिएंसीज। क्लियर? फॉर Yes. एग्जाम्पल उन्होंने क्वार्टरली रिव्यू किया एंड एनी डेफिशिएंसीज अगर उन्हें कुछ मिलती हैं दे शुड रिपोर्ट टू सीनियर मैनेजमेंट या ऑडिट कमेटी एंड prepare some plans for implementation, okay? तो these are component of an internal control, कि एक कंपनी के अंदर इंटरनल कंट्रोल्स जो सेटअप होते हैं उसमें बेसिकली 5 कंपोनेंट्स आएंगे आपके। कंट्रोल इन्वायरमेंट, कि आपकी इन्वायरमेंट जो आप क्रिएट कर रहे हो देयर शुड बी अ एथिकल वैल्यूज इन दैट इन्वायरमेंट, प्रॉपर पॉलिसीज होनी चाहिए, प्रोसीजर्स होने चाहिए कि आपने कैसे हायरिंग करनी है, कैसे रिटेन करना है पीपल को, कैसे आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे ड्यूटीज आप कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप मतलब बांटोगे पीपल्स में, ओके। देन आपका था कि आपके जो भी एंटिटी है उसके अंदर एक रिस्क असेसमेंट प्रोसेसेस होने चाहिए, मींस आपकी ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग क्या क्या रिस्क हो सकते हैं और उन रिस्क का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और उसके रिगार्डिंग आप कैसे उसे रिस्पॉन्ड करोगे। तो देयर शुड बी प्रोसेस इन द एंटिटी। आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन कैसे आपकी कम्युनिकेट होगी, कैसे ट्रांसफर होगी, या कोई भी कम्युनिकेशन है वो इंटरनली या एक्सटर्नली कैसे होगा, तो देयर शुड बी प्रोसेसेस, ओके। नेक्स्ट कंट्रोल एक्टिविटीज मींस कि आप क्या कर रहे हो, फिजिकल कंट्रोल सेटअप कर रहे हो एंटिटी में, आप ड्यूटी सेग्रीगेट कर रहे हो। मॉनिटरिंग मींस यू शुड इवेल्युएट दीज कंट्रोल्स कि क्या कंट्रोल्स वर्क कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उसके लिए आप ऑनगोइंग मॉनिटरिंग रख सकते हो और सेपरेट मॉनिटरिंग रख सकते हो, सेपरेट इवेल्युएशंस कर सकते हो। और जो भी आपको डेफिशिएंसीज दिखती हैं यू नीड टू रिपोर्ट एंड करेक्ट दोस डेफिशिएंसीज, ओके। एनी डाउट इन दिस? No doubt. ओके, तो ये थे आपके बेसिकली इंटरनल कंट्रोल। अब आपके आईटी स्पेसिफिक कंट्रोल्स आ जाएंगे कि जो अगर आपकी एंटिटी में आईटी डिपार्टमेंट है तो उसके रिगार्डिंग व्हाट कंट्रोल्स यू कैन सेट अप। सो बेसिकली आईटी सिस्टम में आपके दो तरह के कंट्रोल्स आएंगे, आईटी जनरल कंट्रोल एंड सेकंड इज एप्लीकेशन कंट्रोल्स। जनरल कंट्रोल्स मींस कि जो आप एक जनरल यानी ओवरऑल सिस्टम पर कंट्रोल लगा रहे हो, ओके। और एप्लीकेशन कंट्रोल्स में आ जाएंगे आपके जो आप पर्टिकुलर प्रोसेस से रिलेटेड, पर्टिकुलर एप्लीकेशन से रिलेटेड कंट्रोल सेटअप कर रहे हो।
ओके आप ये वापस एक्सप्लेन करोगे, समझा नहीं मुझे, कंफ्यूज हो गई मैं। ओके, जस्ट अ मिनट, स्लाइड मिस हो गई मुझसे भी। ओके, सो आईटी सिस्टम में यू हैव मेजरली टू काइंड्स ऑफ कंट्रोल। फर्स्ट इज आईटी जनरल कंट्रोल। जनरल कंट्रोल्स मीन्स कि जो आप पूरे आईटी डिपार्टमेंट, पूरे आईटी सिस्टम पे कंट्रोल लगा रहे हो। ओके, नेक्स्ट आता है आपका एप्लीकेशन कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल्स मीन्स कि जो कंट्रोल आप किसी स्पेसिफिक प्रोसेस, स्पेसिफिक एप्लीकेशन पर लगा रहे हो, तो दीज आर कॉल्ड एप्लीकेशन कंट्रोल्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर पुटिंग सम एक्सेस कंट्रोल, लाइक कंपनी में बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है और जरूरी, और ये तो नहीं ना कि आप वो सारी इंफॉर्मेशन हर एक एम्प्लॉय को दे दोगे, तो देयर शुड बी सम एक्सेस कंट्रोल कि कौन सी इंफॉर्मेशन किस एम्प्लॉय को देनी है। तो जो भी पीपल वर्क कर रहे हैं तो उनके पास लिमिटेड एक्सेस होना चाहिए, लाइक उनके वर्क के रिगार्डिंग ही इंफॉर्मेशन का एक्सेस होना चाहिए। आप उन्हें पूरी कंपनी का डेटा तो नहीं दे सकते ना। Change हाँ। management means control over changes to IT system to ensure they are authorized and tested। कि जिस जो भी सिस्टम पर चेंजेस आएंगे उस पर कंट्रोल होने चाहिए, कि ये नहीं कि कोई भी आईटी रिलेटेड चेंजेस कर दे और नोबडी लाइक नोज अबाउट इट। तो वो पर्टिकुलर चेंजेस पर आपके कंट्रोल्स होने चाहिए। डेटा बैकअप एंड रिकवरी, बिकॉज आईटी में क्या है, आपका डेटा जो भी है वो एक बहुत सेंसिटिव चीज हो जाएगी, क्योंकि डेटा हो सकता है किसी हैकर के पास चला गया या किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के पास चला गया, तो दे कैन मॉडिफाई दैट डेटा। वो उस डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं या उसका मिसयूज कर सकते हैं। तो यू शुड हैव अ proper controls over the data. Next thing, data backup and recovery means कि आपका डेटा कल को किसी वजह से लॉस्ट हो गया, तो उस डेटा को कैसे रिकवर करना है, यू शुड हैव प्रॉपर प्लानिंग। सपोज करो कि आपका सिस्टम खराब हो गया जिसमें डेटा था, तो अब आप क्या करोगे, आप अपना बिजनेस बंद थोड़ी कर दोगे। या आपका जहां पर लाइक जहां आपका ऑफिस था वहां कोई ट्रेजेडी होगी, कोई अर्थक्वेक आ गया या कुछ भी, तो उस केस में आपके सिस्टम्स वर्क करना बंद कर गए, तो उस केस में आप क्या करोगे। तो डेट मीन्स यू शुड हैव अ प्रॉपर डेटा बैकअप रिकवरी प्लान, कि डेटा अगर इन केस कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो उस केस में आपने डेटा को कैसे रिकवर करना है। कॉन्टिजेंसी प्लानिंग्स होनी चाहिए कि इन केस कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो उस केस में आप अपने ऑपरेशंस को कैसे वापस से लाइक रिज्यूम कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग प्रॉपर प्लान्स होने चाहिए। आपने कभी सुना है वार्म साइट, हॉट साइट, कोल्ड साइट, सुने हैं? नहीं। अच्छा, ठीक है, वो शायद आपकी आने वाली स्लाइड्स में आए। वो आपकी कंटिंजेंसी प्लानिंग का ही पार्ट होते हैं, वो जनरल कंट्रोल्स में ही आते हैं आपके। ओके। ओके, ठीक है, जनरल कंट्रोल मीन्स कि जो आप पूरे सिस्टम पर लगा रहे हो ओवरऑल। नेक्स्ट एप्लीकेशन कंट्रोल्स होते हैं, जो डेटा स्पेसिफिक, एप्लीकेशन स्पेसिफिक कंट्रोल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट कंट्रोल्स। इनपुट मीन्स कि जो आप कंट्रोल्स सेट कर रहे हो टू इंश्योर डेट कि जो भी इंफॉर्मेशन एंटर हो रही है आपके सिस्टम में वो आपकी कंप्लीट हो और एक्यूरेट हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी देखा है कि आप कोई फॉर्म भरते हो या कहीं पर इंफॉर्मेशन ऐड करते हो, तो समटाइम्स दे हैव सम लिमिट्स कि आप सिर्फ इतनी ही डिजिट ऐड कर सकते हो, लाइक पिन कोड में ओनली 6 डिजिट यू कैन ऐड, और अगर आप फोन नंबर ऐड कर रहे हो तो यू कैन ऐड ओनली 10 डिजिट्स। अगर आप किसी स्टेट का नेम डालते हो तो उसमें पर्टिकुलर सिटीज आ जाती हैं उस स्टेट के रिगार्डिंग। देखा है आपने ये चीजें? हाँ। तो ये सारे होते हैं इनपुट रिलेटेड कंट्रोल, कि जिसमें आप जैसे फील्ड चेक, वैलिडिटी चेक, ये कंट्रोल सेट कर रहे हो ताकि आपकी इंफॉर्मेशन करेक्ट एंटर हो। ओके, जैसे अब आप डेट ऑफ बर्थ
एंटर करते हो तो उसमें एक पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑलरेडी गिवन होता है, आप मंथ की जगह डेट नहीं एंटर कर सकते। हाँ। तो ये आपके बेसिकली इनपुट कंट्रोल्स होते हैं विच इंश्योर कि जो इंफॉर्मेशन ऐड की जा रही है देयर शुड बी दैट शुड बी प्रॉपर। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग कंट्रोल्स, मीन्स कि जो कंट्रोल्स आपके रिलेटेड टू प्रोसेसिंग लगाए गए हैं, कि आपकी जो कंप्यूटर में आपने इंफॉर्मेशन डाली है वो इंफॉर्मेशन करेक्टली प्रोसेस्ड हो, ठीक है, एक्यूरेटली, करेक्टली, कंप्लीटली प्रोसेस्ड हो, तो उसके रिगार्डिंग आपने क्या कंट्रोल सेट किए हैं। आउटपुट कंट्रोल्स मीन्स कि जब आपका आउटपुट आ रहा है उसके रिगार्डिंग आप क्या कंट्रोल सेट कर रहे हो। इसके रिगार्डिंग आप ये भी कंट्रोल सेट कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने जो भी आउटपुट लिया, सपोज अगर आप उससे पेपर वर्क कर रहे हो, उस पेपर में लाइक ऐड करे वो इन्फॉर्मेशन और कल को वो इन्फॉर्मेशन आपकी डिस्ट्रॉय, मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन यूजलेस हो जाती है, तो उस केस में आपका ये भी कंट्रोल रहेगा कि आप उस पेपर को टीयर ऑफ कर दो लाइक प्रॉपरली, कि उस पेपर से कोई इन्फॉर्मेशन कैप्चर ना कर ले। नहीं नहीं, समझा नहीं, वापस। अच्छा, ठीक है, आप ये समझो कि एप्लीकेशन कंट्रोल जो आपके पर्टिकुलर एप्लीकेशन से रिलेटेड है, हाँ, वो कोई, समझा। हाँ, डेटा डाल रहे हो तो वो कंट्रोल्स आपके इनपुट कंट्रोल्स में आ जाएंगे। डेटा जो प्रोसेसिंग पर लगाए हैं आपने कंट्रोल, वो प्रोसेसिंग, और आउटपुट मीन्स जो आपका डेटा आ रहा है, आउटपुट होकर आ रहा है, तो उसमें ये कंट्रोल हो सकते हैं लाइक आप आउटपुट कंट्रोल्स में फॉर एग्जांपल कि जो भी आपका आउटपुट आया है वो एक्यूरेट हो, कंप्लीट हो, ऑफ रिपोर्ट्स जनरेटेड फ्रॉम द सिस्टम, और अगर आपने वो हार्ड कॉपी ली है उन आउटपुट की और वो कल को आपका मतलब वो डेटा आपका यूजलेस हो गया, तो आपके ये भी कंट्रोल होना चाहिए कि आप उस पेपर वर्क को प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करो, कि ताकि वो पेपर्स किसी के हाथ में ना लगे, क्योंकि इसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है आपकी। ओके, समझा। ओके, so next is our entity level control, processes level control, and transaction level control. So relevant control for assurance, so basically ये controls क्या है, entity level controls means कि जो entity level पर setup है, like people at the top, board of directors, audit committee, oversight role, कि जो आपने एंटिटी पर कंट्रोल सेटअप किए हैं, बिकॉज अब आईटी डिपार्टमेंट है या आपकी कंपनी में आईटी का मेजर रोल है, तो लेकिन उसे परफॉर्म करने वाले भी तो पीपल ही हैं, तो देयर शुड बी अ प्रॉपर कमिटमेंट टू इंटेग्रिटी, एथिकल वैल्यूज, और उनको ओवरसाइट करने के लिए प्रॉपर गवर्नेंस होनी चाहिए, मींस प्रॉपर आपकी ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड होनी चाहिए कि दे शुड परफॉर्म द ओवरसाइट रोल। क्लियर? तो दीज आर हाँ, clear। कंट्रोल्स called entity level control. नेक्स्ट इज प्रोसेस लेवल कंट्रोल। प्रोसेस लेवल कंट्रोल मीन्स कि जो अब आपके प्रोसेसेस चल रहे हैं उन पर क्या कंट्रोल्स लगा रहे हो आप। फॉर एग्जाम्पल सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। सेग्रीगेशन मीन्स कि आपने ड्यूटीज को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ताकि किसी सिंगल इंडिविजुअल के पास में सारा एक्सेस ना जाए। ओके, तो आपने ड्यूटीज क्या कर दी, डिवाइड कर दी। अंडरस्टूड। Reconciliation means कि you are performing the reconciliation to detect and correct discrepancies, कि एक पर्टिकुलर जैसे आपकी इंटरनल ऑडिट्स होती है ना, कि जिसमें आप बेसिकली रिकंसाइल करके देख रहे हो डेटा को, कि जो डेटा आपका जनरेट हुआ था वो प्रॉपर रिकॉर्ड किया गया है या नहीं किया गया, या जो रिकॉर्ड किया गया है वो उसके रिगार्डिंग प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है, कि कोई आपके फिक्टिशियस अकाउंट्स या फिक्टिशियस सेल्स या कुछ भी ऐसे लाइक डिस्क्रिपेंसीज तो नहीं है। देन तो इंटरनल ऑडिट का क्या मतलब है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी एंटिटी लेवल पर चेक करके चल रहे हो कि आपकी तरफ से तो कोई मिस्टेक नहीं हुई,
देन आप एक्सटर्नल ऑडिट करवाते हो। नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शन लेवल कंट्रोल, जो एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल ऑथराइजेशन कंट्रोल, कि आपकी मान लो सेल्स या आपकी क्रेडिट डिपार्टमेंट है, तो क्रेडिट डिपार्टमेंट के पास आपकी सेल्स ऑर्डर जाने चाहिए, बिकॉज दे आर द पीपल हु विल ऑथराइज कि किन लोगों को क्रेडिट असाइन करना है और किन को नहीं देना। तो देयर शुड बी प्रॉपर ऑथराइजेशन कंट्रोल। ऑल्सो मान लो आपको किसी पेमेंट करनी है, तो आपके पास प्रॉपर कंट्रोलर या ट्रेजरर होना चाहिए जो उस ट्रांजेक्शन को ऑथराइज करे। ऐसे कोई एम्प्लॉय थोड़ी पेमेंट कर देगा। ठीक है, तो ये होते हैं आपके ऑथराइजेशन कंट्रोल्स। एक्यूरेसी मीन्स कि वेरीफाइंग द एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग, कि जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जा रही हैं वेदर दे आर एक्यूरेट और नॉट, तो उसके रिगार्डिंग कंट्रोल्स जो सेटअप होंगे, दीज आर कॉल्ड द एक्यूरेसी कंट्रोल्स। अंडरस्टूड। ओके, कंट्रोल रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, लाइक जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो उसके रिगार्डिंग क्या कंट्रोल्स होने चाहिए। फर्स्ट इज कंफर्मिटी विद गैप, कि जो भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की, दे शुड बी अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर अकाउंटिंग प्रिंसिपल। Internal review processes means regular review by knowledgeable personnel to ensure conformity with the accounting standards, की उसके रिगार्डिंग आप इंटरनल रिव्यू भी करवा सकते हो कि क्या आपकी जो भी प्रोसेसेस चल रहे हैं, ट्रांजैक्शंस या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, कि वो आपकी प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है। देन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मीन्स कि कितना रिस्क एसोसिएटेड है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। मीन्स कोई गलती होने के कितने चांसेस है, कितना रिस्क है कि आपकी फाइनेंशियल्स में कुछ ना कुछ मिसस्टेटमेंट होगी मटेरियल। तो उसके रिगार्डिंग आपके रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स होते हैं, जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हो, एनालाइज करते हो रिस्क related to material misstatement. ओके, नेक्स्ट प्रिवेंटिव और डिटेक्टिव कंट्रोल सेटअप किए जाते हैं। प्रिवेंटिव मींस कि जो कंट्रोल आपके प्रिवेंट करे, such as excess control, segregation of duties. ओके, these controls will prevent कि कोई एरर या फ्रॉड ना हो कंपनी में। कि आपने क्या किया, आप अपनी तरफ से प्रिकॉशंस लेकर चल रहे हो, जिसे आप प्रिवेंटिव कंट्रोल्स बोलते हो। मींस आपने ड्यूटी सेग्रीगेट कर दी, आपने एक्सेस कंट्रोल्स लगा दिए कि जिन पीपल के पास लाइक चेक आ रहा है, या जो पीपल वाउचर्स बना रहे हैं पेमेंट के लिए, आपने मान लो कहीं पेमेंट देनी है, उसके रिगार्डिंग वाउचर्स बना रहे हैं, उनके पास ऑथराइजेशन कंट्रोल ना हो, कि वो प्रिपेयर भी कर रहे हैं, ऑथराइज भी वही कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ ना हो। तो ड्यूटी सेग्रीगेट होनी चाहिए। या जिनके पास रिकॉर्डिंग है, लाइक जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उनके पास कस्टडी ना हो। ये तो ऐसे होगा ना कि कुछ लोगों को कैश मिला, कस्टमर ने कैश दे दिया और उन्होंने रिकॉर्ड में तो दिखा दिया, लेकिन वो कैश लेकर घर चले गए। तो ड्यूटी सेग्रीगेट होनी चाहिए, जिससे आपकी एरर होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम। डिटेक्टिव मीन्स की कंट्रोल आपके ऐसे कंट्रोल जो डिटेक्ट कर पाए कि अगर कोई एरर या फ्रॉड होता है तो दे विल एबल टू डिटेक्ट इट। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कल को कोई पर्सन फिक्टिशियस सेल्स दिखाना चाहे या कुछ फिक्टिशियस अकाउंट्स क्रिएट करना चाहे, तो आपकी अगर वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है तो उसमें ऑटोमेटिकली एरर आ जाना चाहिए। ओके, या फॉर एग्जाम्पल हाँ। कोई सेल ट्रांजेक्शन आपकी ऑथराइज नहीं की गई, मीन्स अभी सेल ट्रांजेक्शन आपकी क्रेडिट डिपार्टमेंट ने अलाउ ऑथराइज नहीं गई, लेकिन वो स्टिल आगे प्रोसेस हो गई,
तो देयर शुड बी कंट्रोल्स ना कि वो आगे जाकर डिटेक्ट हो जाए, ऐसा ना हो कि उन्होंने मिस कर दी और आगे कोई चेक ही नहीं कर रहा उसे। तो ये होते हैं डिटेक्टिव कंट्रोल्स। जैसे आपने कैमरा सेट कर दिया, आपने बॉडीगार्ड लगा दिया, कैमरा सेट कर दिया कि आपके एसेट सेव रहे, ये प्रिवेंटिव है। लेकिन आपके एसेट्स स्टिल कहीं पर गायब हो गए तो उसके रिगार्डिंग आपको पता चल जाए, दैट इज द डिटेक्टिव कंट्रोल्स। वो आपको रिकंसिलेशन से पता चल सकता है, इंटरनल ऑडिट से पता चल सकता है। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल जजमेंट रिलेटेड टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट मींस लाइक कि आपकी मिसस्टेटमेंट के रिगार्डिंग देयर शुड बी अ प्रोफेशनल जजमेंट कि जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि यस दिस इज अ मिसस्टेटमेंट। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई गलती है या नहीं, उसके रिगार्डिंग आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, कॉम्पिटेंस नॉलेज होनी चाहिए, सुपरवाइजरी कंट्रोल। एक जो भी लोग काम करते हैं देयर शुड बी अ प्रॉपर सुपरविजन बाय सबऑर्डिनेट्स, there should be a proper supervision of work of subordinates by some people who are at top. Consultation means कि establish procedure for consulting with expert on complex और contentious issues कि अगर कोई like आपके यूनिक कोई प्रोसेसेस हो रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग आप कंसल्ट कर सको किसी से, तो देयर शुड बी प्रॉपर प्रोसेस। नेक्स्ट साइज नेचर या डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग हम कंट्रोल्स देखें तो स्केलेबल कंट्रोल्स हो सकते हैं और आईटी कंट्रोल हो सकते हैं। स्केलेबल मींस लाइक नेम इटसेल्फ डिफाइन व्हिच इज अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी बहुत ज्यादा बड़ी एंटिटी है मींस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं, तो यू नीड टू हैव मोर कंट्रोल्स ना एज कंपेयर टू अगर आपकी एक सिंगल शॉप है। ओके, सिंगल शॉप है, आप उसमें सिर्फ कैमरा लगा दोगे डेट इज इनफ, आप लॉक कर दोगे डेट इज इनफ। लेकिन अगर आपकी पूरी मल्टीनेशनल कंपनी है जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके कंट्रोल्स भी होने चाहिए। देन आपके कॉम्प्लायंस प्रोग्राम, लीगल काउंसिल, रेगुलेटरी रिपोर्टिंग कंट्रोल्स होने चाहिए, लाइक रिलेटेड टू लीगल एंड रेगुलेशन पार्ट। Completeness and accuracy related controls means data entry control, reconciliation, review and approval processes. Data entry control means कि जो भी डेटा आप एंटर कर रहे हो that should be accurate. आपकी जो भी इंफॉर्मेशन देखो प्रोसेस तो हो ही जाएगी, लेकिन आपकी जो भी इंफॉर्मेशन एंटर कर रहे हो that should be accurate enough. Reconciliation means कि आप प्रॉपरली रिकंसाइल करके देख रहे हो डेटा कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी के लिए। रिव्यू एंड अप्रूवल मींस कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं हाउ दे शुड बी रिव्यूड एंड अप्रूव्ड बाय द ऑथराइज्ड पर्सनल। अंडरस्टूड। ओके, so next is control related to reliable financial reporting. So previous experience of auditor, आप like in case if you have performed the audit in the previous year also, then it can give you some evidence. Sorry. Okay, so it can give you some evidence related to the controls of an entity. So documentation of prior audit, maintaining documentation from prior audit to identify recurring issues and area for improvement. Continuity in audit team, ensure continuity in audit team to leverage previous experience and knowledge.
Feedback mechanism means a mechanism for auditor to provide feedback on control effectiveness and suggest improvement. So if you have performed the audit in previous year also, then the documentation from previous year audit can give you some idea like कि क्या क्या issues हैं entity से related और क्या क्या areas हैं जहाँ improvement की जरूरत है. Okay, you can also have some feedback mechanism like to provide feedback on control effectiveness and suggest improvement कि एक entity क्योंकि एक ऑडिटर ऑडिट करते हैं तो उसे इश्यूज तो मिलेंगे और इश्यूज को कैसे इम्प्रूव करना है तो उसके रिगार्डिंग आपका एक प्रॉपर फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए एंटिटी के पास कि क्या क्या इश्यूज आइडेंटिफाई हुए हैं और कैसे कैसे इम्प्रूव करने होंगे. सो फॉर एग्जाम्पल आपकी कुछ स्पेसिफिक कंपनी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इन्वेंट्री मैनेजमेंट कंट्रोल. इन्वेंट्री मैनेजमेंट कंट्रोल मीन्स ये कैसे इन्वेंट्री आपकी मैनेज हो रही है उसके रिगार्डिंग कंट्रोल लाइक इम्प्लीमेंटिंग साइकिल काउंट, रेगुलर रिकंसिलेशन टू इंश्योर इन्वेंट्री एक्यूरेसी. कि जैसे जैसे आपकी इन्वेंट्री फ्लो कर रही है आपकी वेयर हाउस से शिपिंग डिपार्टमेंट में तो आपके पास प्रॉपर लाइक डेटा होना चाहिए कि कब कब फ्लो कर रही है और यू कैन ऑल्सो परफॉर्म सम रिकंसिलेशन कि आपकी जो इन्वेंट्री आपकी एट प्रेजेंट पड़ी है और जो रिकॉर्डेड है क्या वो मैच कर रही है या नहीं कर रही. कॉस्ट अलोकेशन कंट्रोल्स हो गए आपके लाइक कैसे कंट्रोल कैसे कॉस्ट अलोकेटेड है अमंग द प्रोडक्ट्स. इन केस यू हैव सम रिटेल काइंड ऑफ बिजनेस उस केस में आपका सेल्स डेटा कंट्रोल हो सकता है लाइक कि जो भी सेल ट्रांजेक्शन्स आ रही हैं वो कंप्लीटली रिकॉर्डेड हो रही हैं या नहीं. वेंडर पेमेंट कंट्रोल हो सकता है लाइक इन केस इफ यू आर परचेजिंग समथिंग तो आपके पास जो भी लाइक इन्वेंट्री आ रही है उसके रिगार्डिंग कैसे पेमेंट हो रही है तो देयर शुड बी सम कंट्रोल्स रिलेटेड टू दिस. और वैसे आपके ये सारे डिपार्टमेंट वाइज कंट्रोल्स डिटेल में आएंगे. ओके लाइक इन केस आप ये आपको एग्जांपल दे रखे हैं. फॉर एग्जांपल आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म है कोई तो उसके अंदर क्या कंट्रोल हो सकते हैं. क्लाइंट अकाउंट कंट्रोल्स, कंप्लायंस कंट्रोल्स. ओके ओके देन आपके इसमें बस ये कुछ ही स्लाइड्स रह गई इस पीपीटी में तो कल हो जाएंगे ये खत्म. ओके ठीक है. आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप नहीं, कोई डाउट नहीं है. ठीक है तो समझ फिर गया इसको. ओके सो फिर बाकी कल कंटिन्यू रखें. ठीक है, चलेगा. ठीक है ओके. कल आपकी ये पीपीटी खत्म हो जाएगी मैं सर को बोल भी दूंगी नेक्स्ट इसके लिए. ओके, डन. ठीक है ओके. थैंक यू. आप तो बुक में बाय. से पढ़ रहे होगे. हाँ हाँ, मैं बुक से ही पढ़ रही हूँ. ठीक है ग्रेट. ओके देन बाय. बाय बाय. थैंक यू. वेलकम.